Hello everyone. Hello जी. So, hello everyone. Hello Lucky Baji. Hello Deep Singh ji. Hello Vicky Manak. So guys, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਕ ਨਿਊ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪੀਸੋਡ. ਸੋ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ. ਹੈਲੋ ਜੀ. ਹੈਲੋ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ. ਹੈਲੋ ਜੀ. ਹੈਲੋ ਗੁਰਦੇਵ. ਸੋ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ. ਸੋ ਵਿਊਵਰਸ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ. ਹੈਲੋ ਮਨੀਸ਼ਾ ਜੀ. ਹੈਲੋ ਜਸਦੀਪ ਜੀ. ਵੈਲਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ. ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਗਿਲ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਆਈ ਐਮ ਗੁੱਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਆਈ ਐਮ ਤੇ ਫਾਈਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਵਾਜ਼? ਜਿੰਨੇ ਵਿਊਵਰਸ ਬਣੇ ਨੇ ਯੈਸ ਸਾਨੂੰ ਯੈਸ, ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਵੌਇਸ ਐਂਡ ਪਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਊਂਡ तो ਥੋੜੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੀਏ ਬਸ। ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਟਰੈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈਲੋ एवरीवन, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੌਇਸ? ਯੈਸ। ਜੀ। ਸੋ ਵਿਊਅਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਸਟਾ ਲਾਈਵ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਜੈਮਸ ਗਿੱਲ। ਸੋ ਗਾਇਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਹੈ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਨੇ ਐਮਡੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀਰਦੀ ਜੀ, ਜੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਗਾਈਸ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੈਮ ਨਾਲ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਮ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਜੋਖਿਮ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਟੂ ਮੈਮ ਆਲ ਦ ਬਹੁਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਰੇ ਫੈਟਰਨਿਟੀ, ਸਾਰੀ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਟਰਨਿਟੀ ਲਈ ਸੈਲੂਟ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਲਪਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਨਰਸਿਸ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਜੀ ਫਸਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਮ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਲਵੇਸ ਅਸੀਂ ਐਕਟਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਯੈਸ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਜੀ ਫਸਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਮ, ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਤੋ ਹਾਂਜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੈਸ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਗਿਆਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀਏ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਜੀ ਵਾਇਰਸ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਜਾਂ ਐਂਡੇਮਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਇਰਸ ਇੰਨਾ ਹੈਵਕ ਵੀ ਚੜਾ ਦੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬਟ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪੂਰਾ ਨਾਲ। ਵਰਲਡ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਸ ਕੋਵ 2 ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਓਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਈਲਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ COVID-19 ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਜੀ ਮਾਈਲਡ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸੈਲਫ ਰੈਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਲੋੜ ਨਾਟ ਨਹੀਂ ਮਚ, ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਸਿਵੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਓਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਿਵੀਅਰ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦਿਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸਾਰਸ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਿਊਮੋਨੀਆ ਲਾਈਕ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਵੀਅਰ ਅਕਿਊਟ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਤੇ ਇਹ ਲੰਗਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਵੀਅਰ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਥਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਰਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਜੀ ਨਾਟ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਹਿਊਮਨਸ। ਇਹ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਐਨੀਮਲਸ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਟਸ ਐਂਡ ਕੈਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਐਨੀਮਲਸ ਤੋਂ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਫਰਸਟ ਵੇਵ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਲਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਲਮੋਸਟ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇयर इज नो ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਗਨੋਰ ਕਿ ਕਰ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਫਲੂ ਲਾਈਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੈਥਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮਾਮੂਲੀ ਡੈਥਸ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਜੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਐਂਡ ਵੀ ਵਰ ਨਾਟ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਲਵੇਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੈਂਡੇਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਵ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਵੇਵ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵੇਵ ਆਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਬਟ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰ ਹੈ। ਨਾਟ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੈਡਲੀ ਵੇਵ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਥਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੀਅਰਸ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੀਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 4 ਵੈਰੀ ਰਿਨਾਊਂਡ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਫਟਾਫਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੀਡ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੈਥਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀ ਹਾਂਜੀ, तो कह लिए कि पैनिक इन्ना क्रिएट हो चुकिया लोगों के विच जदों ਯੈਸ, कि कोई भी सिम्पटम होंदे हैं या बुखार दे या फिर कोई कफ दे सिम्पटम है वो जाके पहला टेस्ट करवा लेंदा है, कहते हैं कि यस, टेस्ट करवाओ। अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो बिना सोचे समझे हॉस्पिटल चला जाता है या एडमिट हो जाता है, ये नहीं सोचता कि घर च भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो इस यस। नाल एक मेरा जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि अगर पॉजिटिव आ जाता है तो कदों तक लगता है कि घर दे विच भी क्वारंटाइन करके या घर दे विच भी ट्रीटमेंट दिता जा सकता है? ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲੂ ਲਾਈਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 10 to 14 ਡੇਜ਼ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ। 10 to 14 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਬਸਾਈਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जी ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ। ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਦ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਜੀ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਫੀਵਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਵਰਗਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ ਹੋ। ਕਫ ਹੈ, ਕੋਲਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੀਵਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕਦੋਂ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੁਆਇੰਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਰੀਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ। 15 to 20 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਪੀਸੀਆਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੀਡ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਫੀਵਰ ਹੈ, ਮੋਰ ਦੈਨ 102 103। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਬ੍ਰੈਥਲੈਸਨੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਰੇਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 30 ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ 12 ਤੋਂ ਜੀ 13 ਆਪਣੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਿੰਟ। ਜਦੋਂ ਇਹ 30 ਜੀ ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੈਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ 에ਅਰ ਹੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਰੀਥ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲੰਗਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਨੈਸ ਐਂਡ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਮੈਮ, ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਫੈਕਟਡ ਯੈਸ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਦੇਖिए ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਡਨਲੀ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਟ ਵਿਲ ਕੀਪ ਔਨ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਮੰਥ 6 ਮੰਥ 8 ਮੰਥਸ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਇਲਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਐਸਥਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਉਸकी ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਦੋਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 100% ਰਿਕਵਰ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਪਲੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਡੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਫੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਹਜੇ ਟੇਸਟ ਐਂਡ ਸਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਜੇ ਰਿਕਵਰ ਲੋਸਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਯੈਸ, ਸੀਟੀ ਚੈਸਟ ਇਜ਼ ਦ ਨੈਕਸਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਚੈਸਟ ਚੇਂਜਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੀ ਹੇਜ਼ੀਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰਸ ਸ਼ੂ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨਸ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਸੀਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਵੀ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਚੈਸਟ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਮੈਮ, ਤੋ ਜਿੰਨੇ ਵਿਊਅਰਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਮ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਸਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੁਮਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਓਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਕ 50% 80% ਜਾਂ 30%, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਹੋ ਨੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ?
ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾਓ? ਦੇਖिए ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲ ਜੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਰ 네ਗੇਟਿਵ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ठीक है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, कई लोग बोल रहे हिंदी में बोलिए, हमें समझ नहीं आ जी, हिंदी में बोल लेते हैं हम। रहा। एक्चुअली क्या बात है कि अगर टेस्ट करवाया ही नहीं है, सभी बिल्कुल परफेक्ट हैं, कभी कभी किसी को फीवर आ रहा है, तो उनको मास्क पहनना चाहिए फैमिली के अंदर या फिर नहीं? जब तक आपका टेस्ट नहीं आ जाता, जब तक आपके टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तो जी डेफिनेटली आप अपने को समझ के कि ये वायरल इन्फेक्शन जो है, कोविड है, आप अपने जो मेजर्स हैं, प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, वो ले सकते हो, जी। मास्क पहन तो सकते हो। हाँ जी। तो मास्क की वैरायटी ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਮਾਸਕ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ 'ਚ ਜਰਮਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ मैं ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਫਵਾਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸਕ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਹਾਰਡ ਟੂ ਬਲੀਵ, ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਬਲੀਵ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟੇਰਾਈਲ ਐਂਡ ਵੈਲ ਇਕਵਿਪਡ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਹੈ, WhatsApp ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਕਿਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਜੀ ਦੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਐਨੀਥਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੀ ਬਟ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੀ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ हैं, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਯੈਸ, ਸਕਦੇ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ। ਮਾਸਕ ਜੀ ਕਹਿ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਖਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਕਸ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਗਿਲ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਜੀ my father is तो 73 years, छाबड़ा जी बोल oxygen रहे थे saturation जी, 90, CRP is 30, hospital him. 30 से हॉस्पिटल Did में। I the राइट right प्लीज। thing? He received 6 doses of Remedimis. Okay. Oxygen is 90. CRP 30, I सीआरपी hospitalized him. Did I 38। do? Yes, you did a very fantastic job, sir. आपको अपने फादर को हॉस्पिटलाइज करना ही था, बिकॉज ऑक्सीजन सैचुरेशन उनकी 95 98 से डाउन है। 90% ऑक्सीजन सैचुरेशन डिमांड करती है कि उनको हॉस्पिटलाइज ओके, किया जाए। विच मास्क इज बेस्ट प्रोटेक्शन? पंकज जी पूछ देखिए रहे हैं। सर्जिकल मास्क जो है वही बेस्ट प्रोटेक्टेड माने जाते हैं, बट एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲੌਥ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਟੂ ਵੇਅਰ ਐਨੀ ਮਾਸਕ। ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੈਸ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਯੈਸ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਯੈਸ, ਉਹਦੇ ਚ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਇਅਰਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਯੈਸ। ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਏ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਫਵਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੋਰ? देखो अफवाह नहीं कह सकते, ये फैक्ट्स जी हैं, दीज आर फैक्ट्स कि ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ स्ट्रेन आया है दैट इज अ म्यूटेटेड वन। फर्स्ट जी वेव में जो वायरस आया था वो इस वायरस से डिफरेंट है।
ये वाला जो वेव, जिस वायरस का ये वेव है, दिस इज अ म्यूटेटेड फॉर्म, ये किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है। जो हमारा 15 to 38 या 40 आप एज ग्रुप मेंशन कर रहे हैं, डेफिनेटली वो इफेक्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे नहीं हो रहे, दूसरे भी हो रहे हैं, ये भी हो रहे हैं। तो इसका कारण ये भी रह सकता है कि उनको कोई ना कोई अंडरलाइन डिजीज रही हो, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, किसी ना किसी मेडिकेशन पे हो, डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰਸ ਹੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਾਡੀ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਮਿਊਨੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਸੀਗੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਜੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੈਨਿਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਯੈਸ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨੇ। तो बहुत यस, सारे रीजन हो स्मोक जा करते सकते हैं, हैं। स्मोक करते जी हैं लोग, स्मोक करते तो हैं, बहुत ड्रिंक सारे करते हैं, है ना। रीजन है जी। जी तो बहुत सारे रीजन ने, तो पैनिक नहीं होना चाहिए सब तो पहला था। तो जी अगला जी सवाल मेरा ट्रीटमेंट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ट्रीटमेंट ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ट्रीटमेंट ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਰਨ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਲਾਜ਼ਮਾ यस। ट्रीटमेंट ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ट्रीटमेंट ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ हाँ ਯੂਜ਼ जी। ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 50,000 ਦਾ ਵੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, 20,000 ਦਾ ਵੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵੈਲੈਸੈਂਟ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ मैं हिंदी च कन्वर्ट हो, आई जस्ट स्विच टू हिंदी बिकॉज हिंदी च बोलना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हम इसमें क्या करते हैं कि जो पेशेंट्स ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं इन्फेक्शन से, जी उनके अंदर एंटीबॉडीज फॉर्म हो चुकी हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं इनके अंदर से वो एंटीबॉडीज लेके जो हमारे डिजीज्ड पेशेंट्स हैं उनमें हम ये इन्फ्यूज करते हैं। डोज करते हैं। अब ये इफेक्टिव नहीं है, ऐसे स्टडीज भी हैं। अब इफेक्टिव जी क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस जो हम प्लाज्मा थेरेपी देनी है, ये हमने देनी है विद इन 72 आवर्स ऑफ द ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸਿੰਪਟਮਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जी ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ठीक है, ये जी हमारा जो टाइम पीरियड है इनफ्यूजन ऑफ प्लाज्मा थेरेपी वो मैटर करता है कि वो कितना क पेशेंट ਨੂੰ हेल्प करेगा फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। क्योंकि इन्ना एंटीबॉडीज ਦਾ ਰਸ਼ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇਮਿਊਨੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਲਿਵਰ जी ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਿਡਨੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰ ਦਈਏ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਉਹਨੂੰ जी ਟੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ कोई ਬਾਡੀ नहीं ਉਹਨੂੰ है। ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ, ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੈਥਸ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਨਹੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਫੇਲਿਅਰ ਰੇਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨਾ ਇਮਿਊਨੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਫਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਰਗਨਸ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਨੇ ਇਫੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਇਜ਼ ਫੇਲਿੰਗ ਇਨ ਥੀਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦ ਇਨ 72 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫਟਾਫਟ ਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੋਏ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ जी ਜਿੱਥੇ तो ਆਪਾਂ मेन ਗੱਲ जी ਹਾਂਜੀ तो मेन ਜਿਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਯੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तो ਯੈਸ ਜਿਹਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ परिणाम ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਹੈ ਕੀ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਟ। ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਡਰਗ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਐਨਏ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਐਨਏ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ग्रो करता है या रेप्लीकेट करता है, उस चीज ਨੂੰ ਇਹ स्टॉप करता है। दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन आरएनए ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर।
ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਨਹਿਬਿਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ जी ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। नहीं ਠੀਕ ਹੈ, होएगा। ਫਸਟ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਰਗ। ਨਾउ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਥੈਰੇਪੀ। एंटीबायोटिक। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ जब हमारा वायरस मर गया तो आगे जी वो ऑर्गन्स को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो जो पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे है, सपोज पेशेंट ने 15 से 20 दिन हॉस्पिटल में रहना है, तो वो कट डाउन होके 5 से 7 दिन हो जाएगा। सो हॉस्पिटल स्टे लेस हो जाएगा उसको, वो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ कम जाएगा। इसीलिए हम ये वाला इंजेक्शन रेकमेंड कर दें ओनली अंडर हॉस्पिटल गाइडेंस। तुसी ये लैके अपने घर जाके नहीं ला सकते हो, ठीक है। जी ये सिर्फ हॉस्पिटल सेटअप्स में ही मिलेगा, आपको बाहर फार्मास्यूटिकल्स पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। जी ये हॉस्पिटल गाइडेंस के अंडर ही मिलेगा। जो आपको मार्केट में मिल रहे हैं हो सकते हैं वो डुप्लीकेट है, बिकॉज जैसे ही किसी चीज की शॉर्टेज होती है, ट्रेंड है अपने इंडिया में कि उसके फटाफट उसकी डुप्लीकेसी आ जाती है एंड लोग पागल हो जी जाते हैं। चाहे फिर वो इतना घबरा जाता है बंदा, कहते हैं जी इंजेक्शन लाओ। भाई आईवी इंजेक्शन देना है अपने पेशेंट को। आईवी जी आप घर पे नहीं लगाएंगे ना आईवी। 5 से 7 जी इंजेक्शन लगने हैं पेशेंट को, आईवी लगने हैं, उसको आप घर पे नहीं लगा सकते, वो हॉस्पिटल सेटअप्स पे हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में लगाएंगे आप। तो ब्लैक मार्केट हो रही है या वो ज्यादा में मिल रहा है, यू हैव टू टेक केयर कि वो डुप्लीकेट भी हो सकते हैं अगर आपको बाहर मिल रहे हैं, ठीक है। जी तो और एक और पॉइंट मैं यहाँ एड ऑन करना चाहूंगी, अगर आपने काफी जी सर्च करी होगी मेरे साथ बात करने से पहले, जी तो जी आपने ये भी सर्च किया होगा कि दिसंबर 2020 के वन बाद ये इसकी प्रोडक्शन कम कर दी गई थी, फरवरी में। जी है ना। जनवरी फरवरी में इसकी प्रोडक्शन कम कर दी गई थी, बिकॉज हम जी आसानी से बोलते अब तो चला गया कोरोना, अब तो खत्म हो गया, अब आएगा नहीं, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इस ड्रग की। जी सेकेंड, आपने ये भी देखा होगा अप्रैल 2021 में इसका एक्सपोर्ट सडनली बैन कर दिया गया था टू अदर कंट्रीज। जी वो क्यों बैन कर दिया गया था? बिकॉज हमारे यहाँ इतना शॉर्टेज हो गया था, हमारे को इतनी ज्यादा इस ड्रग की जरूरत थी कि हमारे को नहीं सप्लाई हो रही थी, क्योंकि एक तरफ तो हमने इसकी प्रोडक्शन कम कर दी थी, दूसरी तरफ जी इस प्रोडक्शन को एकदम से हम बढ़ा नहीं सकते थे। वही 6 कंपनीज हैं, वही 6 प्लांट्स हैं इंडिया में जो इस ड्रग को बना रहे हैं, 3-4 कंपनीज हैं, यूएस बेस्ड कंपनीज हैं जो हमारे यहाँ प्लांट्स हैं, वही कंपनीज, वही ड्रग कंपनीज बना रही थी इसको। वो प्रोडक्शन कम हो गई, प्रोडक्शन कम जी होगी और जो हमारे पास था वो हमने एक्सपोर्ट कर दिया, तो शॉर्टेज तो डेफिनेटली होनी थी। जब सडनली मार्च अप्रैल में इसकी सडन वेव आई, सडन केसेस जी रोज लाखों के हिसाब से केसेस जब आने लगे, डेथ्स आने लगी, तब हमें रियलाइज तो हुआ, सडनली हमारे आंखें खुली कि नहीं नहीं ये हमें बाहर नहीं भेजना। जी तब हमने इसका एक्सपोर्ट करना बंद किया। ये अप्रैल 2021 की बात है, ये मई चल रहा है। सो आप ये देखिए हमने किस वक्त एक्शन लिया है टू कंट्रोल दिस। और तब तक मार्केट में इतनी शॉर्टेज हो चुकी थी, लोगों में इतना पैनिक था कि हमें ये ड्रग चाहिए चाहे जितने मर्जी में भी मिल जाए। सो ब्लैक मार्केटिंग स्टार्टेड। या तो जितने व्यूवर्स देख रहे हैं या फिर देखेंगे आगे हमारी वीडियोस, तो उनको ये बता दें कि जितनी भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं ये अफवाहें, और पहली बात तो ये है कि हर एक कंट्री का जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो अलग होता है, यस, तो उसको इंडिया से मिला के ना देखें। तो दूसरा बिल्कुल। ये जो इंजेक्शन है जो मार्केट में मिल रहा है, यहाँ तक कि सुनने में ये भी आया है कि लोग 5-5, 10-10 इंजेक्शन अपने घर में रख रहे हैं, 30,000 के लेके अपने घर में रख रहे हैं। तो उनको अवेयर कर देना चाहिए कि इन इंजेक्शन का उनके लिए कोई काम नहीं है, ये बिकॉज ये प्लेसिबो हो अंडर। सकते हैं, प्लेन वाटर की वायल्स भी हो जी सकती हैं, प्लेसिबोज भी हो सकती हैं। ऐसे मत सोचिए कि जो आपको बाहर मार्केट से मिल गया वो आपने वो रियल वाले ड्रग्स ले लिए हैं। देयर इज नो गारंटी। जो आपको ये वाले मेडिसिन मिलनी है, रेमडेसिविर जैसी मेडिसिन मिलती है, आपको हॉस्पिटल सेटअप में मिलेंगी, आपको बाहर नहीं मिलेंगे। जी और हॉस्पिटल के गाइडलाइंस के अंडर ही ये जो यूजेस की जाती है मेडिसिन यस, की। तो जी जितने भी व्यूअर्स बने हैं या देख रहे हैं, इन अफवाहों से बचो, और जो भी आप खरीद रहे हो उनको खरीदने से परहेज करो। तो जी, तो वैक्सीनेशन एक बड़ा हथियार कह सकते हैं कि हमारे लिए अब बन चुका है। तो यस वैक्सीनेशन की कमी भी बहुत आ रही है, वो तो सबको पता ही है। तो वैक्सीनेशन की अफवाहें भी बहुत सारी हो चुकी है अब। यस लाजमी है कि इंडिया में कोई भी अगर बात चलती है तो उसकी अफवाहें उतनी लाजमी हो जाती हैं। तो यस वैक्सीन को लेके एक बड़ा सवाल ये है कि वैक्सीन किनको लगवानी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि किनको डायबिटीज होती है या शुगर होती है, तो उनको लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।
और यस उसके साथ बिल्कुल। साथ एक स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत सारी गर्ल्स ने या लेडीज ने हमें भेजा कि जब प्रेगनेंसी होती है तो उसके दौरान ये वैक्सीन लगाई जा सकती है नहीं, क्योंकि बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हुई बट इस क्वेश्चन पे अभी तक किसी ने कोई चर्चा नहीं की है, या जी। फिर किसी भी चैनल्स पे ये नहीं दिखाया गया है या बताया गया है कि वैक्सीन जो है प्रेगनेंसी में लगाई जा सकती है या नहीं लगाई जा सकती। ओके, पहले हम इस पॉइंट पे आए कि ये वैक्सीन किनको लगानी चाहिए। जी ठीक है। जो अभी 18 प्लस हैं, पहले हमारा एक सेटअप आया कि जी 60 प्लस वालों को लगेगी, फिर आया 18 प्लस वालों को लगेगी। जी इसका एक मकसद रहा है क्योंकि बच्चों में ना ज्यादा ट्रायल्स नहीं हुए हैं। नंबर वन, वी डू नॉट नो द एफिकेसी ऑफ दिस। सेकेंड, इट जी इज ऑल्सो फाउंड, स्टडीज नहीं बताया है, जो रिसर्च हो रहे हैं रोज, अलग अलग जगहों से रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं कि ये वाली इन्फेक्शन जो है बच्चों में माइल्ड टू मॉडरेट है, इट इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, इसलिए हमने अभी तक इनको इंजेक्शन नहीं लगाया। जो इंजेक्शन नहीं है। 18 प्लस हैं या जो भी जितने भी लोग हैं, उन सबको वैक्सीनेशन लगवानी है। इससे जी आपको इम्यूनिटी बिल्ड होएगी। आपको अगर वो वायरस हो जाता है, अगर आपको वो इन्फेक्शन हो जाती है और अगर आप लड़ने की शक्ति। प्रोटेक्टेड हो, आप फिर आपका डर थोड़ा कम हो जाएगा कि मेरे पास एक कवच है जो मुझे कवच है। प्रोटेक्ट करेगा। बट आपने ये भी देखना है कि आपको इंजेक्शन लग गया, वैक्सीन लग गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप खुले एकदम सुपरमैन की तरह घूमोगी अब तो मुझे होगा ही नहीं इन्फेक्शन। सो इन्फेक्शन तब भी हो सकता है। कारण ये है कि जो आपकी फर्स्ट डोज लगनी है उसके 4 to 6 वीक्स के बाद सेकेंड डोज लगनी है। जो जी सेकेंड डोज लगनी है उसके भी 2 to 4 वीक्स लगते हैं फॉर द इम्यून सिस्टम टू गेट एक्टिवेटेड इन योर सिस्टम। तो आप ये नहीं कह सकते कि कल मुझे इंजेक्शन लगा आज मैं इम्यून हो गया। नो, बॉडी को प्रोटेक्शन के फॉर्म में आने के लिए 2 से 4 हफ्ते लगते हैं सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन के बाद। ठीक है। जी और ये सबको लगाना चाहिए, जो डायबिटीज है या हाइपरटेंसिव है सबको लगाना चाहिए। ओनली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हैं, जो जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो है, रहते कि उनको कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है या वो जी स्किन HIV प्रॉब्लम। वाले पेशेंट जिनमें बहुत इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ऑलरेडी उनका सिस्टम है, बहुत वीक है, उनमें इम्यूनिटी अगर आप दे भी दोगे तो उनकी बॉडी ने कुछ नहीं करना, उनको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक है। जी तो ऐसे लोगों को हम सोच सकते हैं कि उनमें इफेक्ट नहीं आएगा। बाकी जनरल पब्लिक में सबको इम्यूनाइजेशन करानी चाहिए है। और प्रेगनेंसी में देखिए, आप प्रेगनेंसी और गोइंग टू बी प्रेग्नेंट या जो आप बच्चे को फीड कर रही हैं, ये लोग ये वैक्सीन से परहेज ही रखें। बिकॉज इनकी एफिकेसी का या इनके साइड इफेक्ट्स का अभी तक कोई स्टडी नहीं आया है। एक जी आर्टिकल मैंने कहीं रीड किया था जिसमें इट वाज मेंशन्ड कि अगर प्रेग्नेंट लेडी ये इंजेक्शन लेती है तो प्री टर्म डिलीवरीज होने के चांसेस हैं, बट स्टिल इट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड। तो ये जी चीज जो प्रेग्नेंट हैं या जो प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं या जो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करते हैं, वो ये नहीं लेंगी वैक्सीन। जी। तो जितने व्यूवर्स आई थिंक उनको जानकारी मिल चुकी होगी। तो वैक्सीन को लेके एक बड़ा सवाल ये आ गया कि सबसे पहले जब वैक्सीन लगने लगी थी तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, जब कोई वैक्सीन लगवाने जाता था उनको एक सर्टिफिकेट मिलता था, उस सर्टिफिकेट में लिखा जाता था कि 28 डेज के बाद आपको वैक्सीन लगेगी। जी। तो अब नेक्स्ट डे वो जब गए तो उनको बोला गया कि नहीं आपको 45 डेज बाद लगेगी। तो अब हम्म। सुनने में आ रहा है कि ये 96 डे यानी कि 6 या 7 वीक्स के बाद लगेगी। तो मैक्सिमम आज मैक्सिमम 12 वीक या 13 वीक। 12 वीक्स, 12 सो वीक्स। 12 वीक्स। तो ये बढ़ता जा रहा है, ये दिन जो है ना, डेट ये बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट जो है पब्लिक का वो टूटता नजर आ रहा है। कहते हैं कि पैनिक क्रिएट हो रहा है लोगों में। तो ऐसा क्यों नहीं, किया जा रहा है, मतलब ये जो 12 वीक का समय रखा है इसमें। देखिए, ये जो वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है ना, ये उसके रहते जी किया होगा, ये उसके रहते किया होगा। और मैक्सिमम जो डोज सेकेंड लगवा सकते हैं वो 12 हफ्ते तक, इंटरनेशनल स्टडीज कहते हैं 12 हफ्ते जी तक आप ये सेकेंड डोज ले सकते हो। सो जिनका जी सेकेंड डोज अभी रहता है, 2 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए, 12 हफ्ते तक यू कैन वेट फॉर योर सेकेंड डोज। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जी। इसमें कई व्यूवर्स। देखिए, जब जब जी तक हमें सप्लाई नहीं है हम आगे वैक्सीनेशन कहाँ से लगवाएं। जी बिकॉज इनिशियली जब हमारे पास वैक्सीनेशन का इतना ट्रेंड नहीं था, लोग लगवा ही नहीं रहे थे। आई टेल यू, कितने सारे फोन आए थे, जी हमारा नाम आ गया, नंबर आ गया, वैक्सीनेशन लाइए कि नहीं।
दे वर नॉट टेकिंग वैक्सीनेशन। तो इतनी अब वैक्सीन सब पड़ी थी, बाहर सप्लाई कर दी, बाहर सप्लाई कर दी, दूसरे कंट्रीज में अब हेल्प करने के लिए भेज दी। अब कर दी तो अब सब लोग कहते हैं हमें लगनी चाहिए। तो इसके हाँ, साथ ये भी सवाल है लोगों का कि अगर हम लगवा लेते हैं फर्स्ट डोज, क्या पता गवर्नमेंट के पास स्टॉक 6 महीने आए ही ना, और हम सेकंड जो डोज है उससे भी रह जाएं। देखो ये थोड़ा डाइसी है, इस पे मैं भी क्या कमेंट करूं। जहां पे गवर्नमेंट पॉलिसीज आ जाती हैं वहां पे हम हेल्पलेस हैं। जी जहां अभी देखिए, जब तक वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, इनफ वैक्सीन, जितनी हमारी पॉपुलेशन है, हमारी पॉपुलेशन भी तो बहुत है ना, जितनी जी हमारी पॉपुलेशन है, जितने हमारे यहाँ पर महामारी फैली है, उस हिसाब से वैक्सीनेशन की कमी होगी, और इसीलिए वैक्सीन आ नहीं रही हैं। जब आ ही नहीं रही हैं, पीछे से सप्लाई नहीं है, तो डॉक्टर्स जी या मेडिकल प्रोफेशनल्स हाउ कैन वी हेल्प पेशेंट्स। उनको हम सिर्फ यही जी बोलेंगे कि आप अपनी प्रोटेक्शन करें, आप अपने आप को इस वायरस से बचाएं। जितना आप अपने जी आप को इस वायरस से प्रोटेक्ट करेंगे, उतना ही आपके लिए और आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए बेनिफिट होगा। जी। तो भारत देश है तो बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं हर एक बात में। तो वैक्सीन को लेकर ये भी सवाल है, एक कोवाशील्ड है, एक कोविक्स है, तो उनमें हाँ से जी। कौन सा लगवाएं? और कईयों को ये डाउट होता है कि मैंने पहले कोवाशील्ड लगवाई थी, बाद में मेरे को दूसरी लगा रहे हैं तो मैं नहीं लगवाऊंगा। देखिए, एज अ पेशेंट मेरे पास चॉइस नहीं है कि मैंने कोविशील्ड लगवानी है या कोवैक्सीन लगवानी है। जी बहुत जरूरी अंडरस्टैंड करना कि जिस सेंटर से आपको परमिशन मिली है या जिस सेंटर में आपने अपने आप को रजिस्टर करवाया है, उस सेंटर में जो भी वैक्सीन बाय द गवर्नमेंट अप्रूवल वहां पहुंची है, आपको वही वैक्सीन लगेगी। सो आपने अगर कोवैक्सीन लगाई है तो आपने कोवैक्सीन का ही सेकेंड डोज लेना है। कोविशील्ड लगवाई है तो कोविशील्ड का ही सेकेंड डोज लेना है। एंड दोनों वैक्सीन आर इक्वली इफेक्टिव, और दोनों वैक्सीन में सार्स वायरस नहीं है, किल्ड वायरस है। सार्स वायरस नहीं है तो ये नहीं कह सकते कि ये वैक्सीन लगवाने के बाद मुझे कोरोना हो गया। कई लोगों ने ऐसे भी बोला है कि मैंने 4 दिन पहले वैक्सीन लगाया था और मुझे जी अभी 5वें दिन कोरोना हो गया। सो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वैक्सीन लगवाने से पहले आप किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में रहे हो, जी। पॉसिबिलिटी है। पॉसिबल। वैक्सीन लगवाने के बाद नहीं हुआ, ये हो सकता है आप किसी के कांटेक्ट में आए हैं, उसके बाद आपने वैक्सीन लगवाई है, फिर आपको कोविड के सिम्टम्स आए हैं। कोविड के सिम्टम्स आने जी में भी 2 to 14 डेज लगते हैं। आप आज किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं, उसके जी बाद 2 से 14 दिन लगते हैं आप में कोविड के लक्षण आने में। ठीक है, तो जी इसलिए आपने, ये आपकी चॉइस नहीं है। नंबर वन, जो आपने पहले वैक्सीन लगवाई थी वही लगवानी है। इंडिया में यही दो मार्केट में यही है। दो और वैक्सीन अभी नॉलेज में आ रहे हैं, एक स्पुतनिक करके है और जी। एक है जॉनसन एंड जॉनसन। लेट्स जॉनसन होप एंड कि, हाँ, लेट्स होप कि दीज वैक्सीन वर्क्स द सेम वे जैसे कोविशील्ड एंड कोविशील्ड ने वर्क किया, जी ये भी अच्छे से वर्क करें। जी। कुछ लोग तो ये भी वेट कर रहे हैं कि वो वैक्सीन आ जाएगी तो हम वो वाली लगवाएंगे। तो जी। तो बहुत सारे सवाल हैं, एक और सवाल हम लेते हैं। आजकल डबल मास्क का बैन चल रहा है, क्या लॉजिक है इसमें? जी बताइए, डबल मास्क डबल से क्या मास्क, प्रोटेक्शन हो डबल सकती मास्क है? से लोगों को लगता है कि हम डबल प्रोटेक्ट हो गए हैं, तो अपने आप को डबल मार्क्स से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो तो ये पहनना इसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि अपने आप को आपने एयर हंगर पे नहीं करना है। यू हैव टू बी, आपको बहुत केयरफुल रहना है कि अगर आप डबल मास्क करें तो आपका दम ना घुटे, आपको बार बार सांस लेने के लिए मुंह बाहर निकालना है मास्क में से। तो ये इस तरह है। जी। सो मैम, ये तो हो गई वैक्सीन पे बात और मास्क पे बात हो चुकी है, तो अब हम बात करते हैं डाइट पे। तो हम्म। डाइट के लिए क्या आप सुजेस्ट करना चाहेंगी? बिकॉज Not only before डाइट vaccination, even after vaccination you get. Yes, definitely you can get vaccination. मैंने अभी बताया है कि कोई जरूरी नहीं है कि आपने आज कोविड इंजेक्शन लगाया है तो आपको 4 दिन के बाद डेफिनेटली ये इन्फेक्शन हो सकती है, क्योंकि जिस दिन मास्क लगा, जिस दिन इंजेक्शन लगाया उससे पहले आप किसी के साथ कांटेक्ट में आए होंगे। ओके, जी। सो दैट इज द रीजन। हाँ जी। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारी नॉलेज मिली है, थैंक यू सो मच। सबका सबका प्यार मिल रहा है। सो आई होप आप सबको अवेयरनेस हो रही होगी, आपको जो भी क्वेश्चन है उनके जवाब मिल रहे होंगे। सो हम बात कर रहे थे डाइट की। तो डाइट के लिए आप क्या सुजेस्ट करना चाहेंगे? बिकॉज डाइट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी। तो कोविड से पहले या कोविड होने के बाद
कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए डाइट इन में? एनी केस हम किसी भी बात, हम डाइट भी कहाँ, जहाँ हम डाइट की बात करते हैं तो आपको बहुत सिंपल सा फंडा रखना है कि डाइट हमेशा हेल्दी एंड बैलेंस डाइट होनी चाहिए। जी। ठीक है, ये इसी इन्फेक्शन के लिए नहीं, जनरली अपनी बॉडी की इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए आपको हमेशा हेल्दी एंड बैलेंस डाइट लेना है। आपको इनफ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना है, इनफ अमाउंट ऑफ फैट लेना है, फाइबर लेना है। ये सारी चीजें जी। आपकी बैलेंस्ड अमाउंट में आपकी डाइट में होना चाहिए। रही बात जो हमारे वायरल इन्फेक्शन के लिए या कोई भी फ्लू वाली इन्फेक्शन होती है, तो इन दैट केस आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है। विटामिन सी रिच चीजें लेनी है आपने, आंवला हो गया, नींबू हो गया, है ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है जो जिंक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, आपका इम्यूनिटी बूस्टर है। तो ये चीजें आपको ज्यादा अपनी डाइट में लेनी है। ठीक है, और घरेलू नुस्खे बहुत हैं, दादा दादा दादी दीदी जी के घरेलू नुस्खे बहुत होते हैं जी, काढ़ा ले लो, कावा ले लो जी, जी। अदरक ले लो, है ना। ये सारी चीजें साइंटिफिकली कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस रखती हैं। बेसिकली हेल्दी डाइट का मतलब है हमने अपनी इम्यूनिटी मेंटेन करनी है ताकि ये वायरस जो है वो हमें जल्दी से अफेक्ट ना कर सके। जी। तो जी। बहुत सारी अफवाहों में एक अफवाह ये भी आती है कि बहुत सारे जब कोविड-19 के पेशेंट होते हैं, जब तक तो वो घर में ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं वो सही हो जाते हैं, जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। तो ये एक चैलेंज चल रहा है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा, तो इसमें कितनी को सच्चाई नज़र आती है आपको? देखिए जेम्स जी, बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। जी। देखो हमारा सोशल मीडिया अच्छा काम भी करता है, बुरा बहुत करता है, बहुत करता है। बहुत। तो आपको मतलब आपको प्यार करने वाले कम, आपसे नफरत करने वाले ज्यादा होंगे। जो भी अच्छा काम करते हैं उसको मोटिवेट नहीं करेंगे लोग। बहुत इंपॉर्टेंट जी। है वर्ड टू डिमोटिवेट अंडरस्टैंड करें। कि भाई हॉस्पिटलाइजेशन जरूरत किसको पड़ेगी, आप मुझे बताओ। मैं अभी, मेरे को कोविड है, क्या मैं हॉस्पिटल जाने की स्टेट में हूँ? जी। नहीं। मैं घर पे हूँ, अपने आप को आइसोलेट कर सकती हूँ, आई जी, कैन कर सेल्फ सकते हैं। टेक केयर माई सेल्फ। अगर मेरी हालत इतनी बुरी है कि मुझे हॉस्पिटल की जरूरत है, तो मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी के चांसेस भी तो ज्यादा हो जाएंगे ना। जो सिक पेशेंट है जा वही रहा है ना हॉस्पिटल में, वही चाह रहा है। है जी, ना। किसी को शौक तो नहीं अभी है खुद। कोई शौक तो नहीं है। अब जब जी। हॉस्पिटल में जा रहा है इंसान, ठीक है, हॉस्पिटलाइज हो रहा है, वेंटिलेटर पे है, इम्यून सिस्टम उसका काम नहीं कर रहा है, उसके ऑर्गन्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे मेडिसिन से, तो डेथ होना लाजमी है। सो हम ये नहीं कहेंगे हॉस्पिटल जाके डेथ होगी, नहीं बाबा, हॉस्पिटल गया ही इसलिए था कि वो ठीक होना चाहता था। जी। जब आपका जो हमारा ये जो सिस्टम है, जब हम इसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो ट्रीटमेंट डॉक्टर दे रहा है, बट बॉडी को भी तो रिस्पॉन्ड करना है ना उस ट्रीटमेंट को। तो जब बॉडी उस कंडीशन में ही नहीं है कि वो उसको रिस्पॉन्ड जी। करे, है ना, तो वो उसको रिस्पॉन्ड करे तो डेथ होएगा। बहुत सिक पेशेंट्स ही जा रहे हैं हॉस्पिटल में, जितने भी टर्शरी केयर सेंटर्स हैं वहां पे सिक पेशेंट्स जा रहे हैं। और सिक बिल्कुल पेशेंट सर। भी ऐसे जा रहे हैं जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन नहीं है, जिनके लंग्स काम नहीं कर रहे, जिनके ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द मेडिसिन। डेथ होनी लाजमी है। हॉस्पिटल में जी। जाकर डेथ हो रही है ये नहीं कह सकते। अभी इस बात को देखो कैसे मीडिया रिप्रेजेंट करती है, जी। हॉस्पिटल में गए तो डेथ होगी। अरे बाबा, उनकी हालत देखो ना आप, तभी आप हॉस्पिटल लेके जा रहे हो ना उनको। लॉजिक है। जी। ठीक है। एंड नो हॉस्पिटल विल पर्पसली, कोई हॉस्पिटल का कोई डॉक्टर कोई स्टाफ पर्पसली पेशेंट के हित में काम ना करे, ऐसा नहीं है। जी। ठीक है। उनकी मॉरल ड्यूटी है कि जो भी आता है उनको पूरा 100% ट्रीटमेंट दी जाए। जी। अब पेशेंट अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, मल्टी ऑर्गन फेलियर के साथ आ रहा है, वेंटिलेटर पे भी उसको कुछ मतलब रिस्पॉन्ड नहीं कर रही उनकी बॉडी, तो फिर जी। मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी बोथ विल इंक्रीज। कह सकते हैं कि हॉस्पिटलाइज की या फिर डॉक्टर की तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि वो मरीज ठीक हो जाए, बट जो मौत है वो भगवान के हाथ में है। इसमें ये नहीं है कि हॉस्पिटल जाके मौत हो चुकी है। तो जी, इसी के साथ एक जुड़ा सवाल है, वैक्सीनेशन चाहिए। अगर वैक्सीनेशन लगवाने के बाद कहीं हम्म। सुनने में आया किसी को दिक्कत आ गई है, चक्कर की दिक्कत आ गई है या फिर फीवर्स की दिक्कत आ गई है, तो ऐसे हम्म। में क्या करना चाहिए उसको? देखिए, किसी भी वैक्सीनेशन से
अभी जब हम बचपन में टीके लगवाते थे, चाहे वो डीपीटी था, बराबर। चाहे वो पोलियो था, चाहे कोई भी इंजेक्शन हम लगवाते थे, कोई इम्यूनाइजेशन वाला इंजेक्शन लगाते थे, जी तो हमें बुखार, डॉक्टर पहले ही बोल देता था कि जी इनको 5 दिन बुखार रहेगा, तो राउंड द क्लॉक 6 बार इनको ये ड्रॉप्स देने हैं आइबू जैसे कि, या क्रोसिन के ड्रॉप देने हैं, देते थे ना। जी सिमिलरली वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी ने जो इम्यून रिस्पॉन्स शो करना है, फीवर आना लाजमी है। जी पेन एट द साइट ऑफ द इन्फेक्शन, फीवर हो गया, हल्का फुल्का चक्कर हो गया, थोड़ी सी डिजीनेस, अनइजीनेस, ये नॉर्मल फिनोमिना है आफ्टर एनी इन्फेक्शन। हाँ, बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है अगर आपको एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन हो गया, आपका सांस नहीं आ रही है, जी चोकिंग हो गई है, आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाना है, या जहां पे आपने लगवाया था, जहां पे फैसिलिटी है इस चीज को, मेडिकल ऑफिसर को जल्द से जल्द मिलना है। इन केस अगर जी आपकी ये जो छोटी मोटी सी रिस्पॉन्स से ज्यादा रिस्पॉन्स है आपका इस वैक्सीन के अगेंस्ट, तो आपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाकर अपने आप को ट्रीट करवाना है, बिकॉज जी। दिस इज, बहुत कम रेट्स हैं। आई थिंक मैंने नहीं सुना कि वैक्सीन से डेथ होगी किसी की, देयर इज नो रिपोर्टेड केस फॉर दिस थिंग। तो मैम सारे मैम आप बहुत अच्छे हैं, अगर थोड़ी जरूरत पड़ी तो आपके हॉस्पिटल में एडमिट होंगे हम। अरे ना जरूरत पड़े भाई। जी, किसी का जरूरत ही ना पड़े तो। जी। जी इसके साथ जी। एक लास्ट सवाल था हमारा। अगर किसी की ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन लेवल 70 पे चला गया और उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं हमारे पास बेड नहीं है, तो दूसरे हॉस्पिटल कहते हैं हमारे पास बेड नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? हम्म, देखिए ऑक्सीजन लेवल 75 इज वेरी वेरी लेस, जी वेरी वेरी लेस। उनको हॉस्पिटलाइज तो करना ही है। बट एक और चीज है, कई स्टेट्स में मैंने काफी देखने में आया है कि वहां पे पेशेंट को घर पे जाके ऑक्सीजन सप्लाई दी जाती है। जी तो अगर पेशेंट की कंडीशन इस तरह की है कि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, या उसकी एज से अबाउट 60 से लेस है, और उसको कोई डायबिटीज नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, उसको एस्थमा नहीं, कोई अंडरलाइन डिजीज नहीं है, और उसका सिर्फ ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है बिकॉज ऑफ कोविड, तो आप उनको, जब तक उनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता, आप उसके लिए ऑक्सीजन घर पे ही अरेंज करके दे सकते हैं। अगेन जैसे ही, लेकिन आपने आपकी बुकिंग जरूर करा लेनी हॉस्पिटल की, जैसे ही आपको हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल होता है, आपने अपने पेशेंट को वहां जल्द से जल्द ट्रांसफर करना है, बिकॉज इट इज नॉट गुड टू ट्रीट दैट पेशेंट एट होम। उसको हॉस्पिटलाइज जी करने की जरूरत है। जी। तो जब तक ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड होती उसको, तो कोई कोई तरीका है कि उसको रिकवर किया जा सके या किसी हद तक? आप घर पे उनको नेबुलाइज कर सकते हैं, आप उनके ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई कहीं ना कहीं से कांटेक्ट करके अरेंज कर सकते हैं, जब तक जी, उनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता। बट हॉस्पिटलाइज करना 75 ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत बहुत लेस है, बहुत 90 कम हो से, जाता है। हाँ जी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है उस पेशेंट को सरवाइव करवाना। जी जी। सो आज का एपिसोड था हमारा जो इसी कोशिश में था कि हम जितने भी आपके सवाल हैं उनका जवाब दे पाएँ। सो हमें बहुत सारे सवाल अभी भी आ रहे हैं। अभी हमने बताया कि 75 जो लेवल है वो बहुत कम है। तो ऑक्सीजन लेवल का पूछ रहे थे वो। तो मैम जाते जाते हम यही पूछना चाहेंगे कि कौन सा मैसेज देना चाहोगे हमारे यूथ को या हमारे इंडिया को पूरे को? आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा इस कोविड पे और उसकी सेफ्टी के लिए? देखिए, सबको रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस इन्फेक्शन से बचें। जी बचने के सिंपल से तरीके हैं, जो कोई ज्यादा आपका, ना इसमें कोई पैसा लगना है, ना कोई टाइम लगना है, कुछ भी नहीं जी लगना, सिर्फ आपको एक मास्क पहनना है। 10 रुपए से लेके 15 रुपए से 20 रुपए का मास्क मिलता है, वो भी नहीं ले सकते हैं तो आप घर पे मास्क बना के वेयर कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बार बार हाथ वॉश करना इज इम्पोर्टेंट। जहां आप भीड़ वाली जगह पे जा रहे हैं, वहां पे आप लोगों से डिस्टेंस पे कर सकते हैं बात, आप डिस्टेंस पहले तो अवॉइड करो बाहर जाना। जी रेयर टू रेयर इमरजेंसी में आप बाहर जाना, अगर जा रहे हैं तो मास्क पहन के जाइए, ठीक है। और अपना इम्यून सिस्टम, आप इम्यून सिस्टम अपना स्ट्रांग रखें, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, और ये जी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जल्द से जल्द अपने नियरेस्ट सेंटर से आप अपने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाइए,
एंड वैक्सीनेशन मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन ऑप्शनल जरूर है और एडवाइजेबल है कि आप वैक्सीनेशन लगवाएं। वैक्सीनेशन का जी सिर्फ आपको ये फर्क है, आपको ये फायदा होगा कि अगर आपको ये इन्फेक्शन हो जाती है तो वो डेडली नहीं होगी, वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगी, आप इजीली रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको एक इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं इस वायरस से फाइट करने के लिए। जी, थैंक यू सो मच मैम, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली आपसे और बहुत सारे व्यूवर्स को भी आई थिंक इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। सो साथ के साथ हम जाते जाते ये भी पूछना चाहेंगे कि आप इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस डालती हैं, बहुत सारा फेम आपको मिला हुआ है, उसके रिगार्डिंग हम जरूर पूछना चाहेंगे कि ये जो वीडियोस आप बनाती हैं ये आपका शौक है या फिर कोई पेशेंट आता है उनके लिए भी आप ऐसे ही हंसते हुए इलाज करती है उनका? यस, आई वेलकम एवरीबडी विद अ स्माइल, बिकॉज हमें भी लगता है कि जब हम एज अ पेशेंट जाते हैं, अगर चिड़चिड़ा सा पेशेंट डॉक्टर जी ट्रीटिंग हो, तो आधा तो वैसे ही मूड खराब हो जाता है कि यार ये कहाँ हमें अच्छे से ट्रीट करेगा। तो एक देखो, स्माइल करना इज ऑलवेज गुड। जी स्माइल स्प्रेड्स, इट स्प्रेड्स बहुत इजीली, सबसे इजीली, बड़े एफर्टलेसली। स्माइल जो है, आप किसी को स्माइल करते हुए देखते हो तो आपको भी स्माइल सीरियसली आ जाती है फेस पे, है ना। तो ये वीडियोस बनाने का शौक मुझे आई थिंक टिकटॉक से रहा है, मैं बनाती थी बिकॉज वैसे ही मेरे को बस मेरे बच्चों ने इंट्रोड्यूस किया है और मेरा शौक बढ़ गया, उसमें मेरे को अप्रिशिएशन मिली, काफी लोग ज्वाइन किए मेरे को, तो एक वो बूस्टअप हो जाता है कि नहीं नहीं अच्छा है, चल करते रहो, है ना। सो दैट्स हाउ आई वाज देयर। अभी इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाने के लिए मुझे ऑलवेज हेजिटेशन थी, बिकॉज बहुत हेजिटेशन थी, बिकॉज मेरे कजन्स, मेरे कॉलीग्स, मेरे डॉक्टर फ्रेटर्निटी वाले बहुत लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो बहुत मुझे बहुत ये था कि ये पता नहीं क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, जी बट देन व्हेन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट, फिर मुझे लगा कि, और प्लस मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं। रेयरली आप मेरे कमेंट बॉक्स में जी जाके कोई एक गंदा सा कमेंट देखोगे, अदरवाइज कमेंट्स आर वेरी नाइस। मेरे फॉलोअर्स बहुत अच्छे, बहुत ही प्यारे लोग हैं, बड़ा जी मतलब मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, अप्रिशिएट जी करते हैं। सो वो एक पुश रहता है टू डू मोर। और अगर मैं जी ऐसी कोई वीडियो, मतलब ज्यादातर कॉमेडी वीडियोस बनाती हूँ, सो स्प्रेड स्माइल्स, आई थिंक इफ यू स्प्रेड स्माइल्स, तो आई थिंक जी वो उससे बड़ा कोई मेडिसिन नहीं होता है। जी अक्सर देखा ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਫ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਮਿਜਾਜ ਤੇ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਗਾਇਸ, ਜਿਨੇ ਹੋਪ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ Yes, ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ yes, ਮੈਮ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਹੀਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵਿਊਵਰਸ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੁਝ ਖਾਸ, ਤੇ ਮੈਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ थैंक ਵਧੀਆ यू ਲੱਗਿਆ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ सत ਕਰਕੇ श्री अकाल जी सारे ਨੂੰ। जी। सत श्री अकाल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल जी, थैंक थैंक यू यू। मैम, थैंक यू।